Bismillahirrahmanirrahim. So in this video, we discuss the electrochemical cell. So what is electrochemical cell? An electrochemical cell is a device that can generate electrical energy from the chemical reaction occurring in it, or uses the electrical energy supplied to it to facilitate a chemical reaction in it. यानी हमारे पास electrochemical reactions क्या है? The reactions accompanied by appearance or disappearance of the electrical energy in the surroundings, those reactions are called electrochemical reactions. या तो इन रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उस सप्लाई करने के बाद केमिकल रिएक्शन होंगे, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. अब इन रिएक्शंस के लिए जो सेटअप यूज़ होता है, जो डिवाइस यूज़ हो रहा है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है केमिकल रिएक्शन से, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं और उसकी वजह से फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस occurring in it. Or electrochemical cell uses the electrical energy supplied to it to facilitate a chemical reaction occurring in it. These devices are capable of converting chemical energy into electrical energy or vice versa. या तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. एज देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. वन इज स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, second is non-spontaneous electrochemical reactions. So therefore there are two types of electrochemical cell, one which is used for spontaneous electrochemical reactions and second is used for the non-spontaneous electrochemical reactions. So the one is the voltaic cell or galvanic cell and second is the electrolytic cell. So voltaic cell or galvanic cell, the electrochemical cell used for the spontaneous electrochemical reactions is called a voltaic cell or galvanic cells. जो spontaneous chemical reaction के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसको कहते हैं voltaic cell. यानी क्या मतलब, ऐसे reactions वो electrochemical reaction जिसमें से electrical energy generate हो रही है, तो उन reactions को study करने के लिए voltaic cell यूज़ करते हैं. So electrochemical cell that is used for spontaneous electrochemical reaction is called voltaic cell or galvanic cell. Voltaic cell uses a spontaneous reaction to generate electrical energy. In the cell reaction, the difference in the chemical potential energy between higher energy reactants and lower energy products is converted into electrical energy. यानी इस केस में higher energy reactants are converted into lower energy product. तो अब हायर से जब लोअर की तरफ आते हैं तो इसका मतलब जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो रिलीज हो रही है. तो वो जो रिलीज ऑफ एनर्जी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ऑपरेट द लोड, फ्लैश बल्ब, सीडी प्लेयर्स एंड सो ऑन. सो इन अदर वर्ड्स द सिस्टम डज वर्क ऑन द सराउंडिंग्स. इन वोल्टिक सेल द सिस्टम डज वर्क ऑन द सराउंडिंग्स. अब इसमें सिस्टम क्या है? सिस्टम है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. सो दिस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन वर्क्स ऑन द सराउंडिंग्स. For example, all batteries contain the voltaic cells. For voltaic cell, delta G is negative. Free energy of reaction is negative and cell potential is positive. Second is electrolytic cell, जो non-spontaneous reaction के लिए use होगा. The electrochemical cell is used for the non-spontaneous electrochemical reactions. So the electrochemical cell used for non-spontaneous electrochemical reaction is called electrolytic cell. And electrolytic cell uses electrical energy to drive a non-spontaneous reactions. ये non-spontaneous reaction खुद ब खुद नहीं होते, तो इन non-spontaneous reactions को drive करने के लिए हमें इन reactions को energy supply करनी पड़ती है. और वो energy किस form में supply करते हैं? In the form of electric current. So such type of reactions are non-spontaneous electrochemical reactions. और इन reactions के लिए जो setup use होगा उसको कहते हैं electrolytic cell. In the cell reactions, अब इस केस में लोअर एनर्जी रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करते हैं हायर एनर्जी प्रोडक्ट में. सो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाना है
तो इस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. सो इन दिस सेल रिएक्शन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई कन्वर्ट्स द लोअर एनर्जी रिएक्टेंट्स इनटू द हायर एनर्जी प्रोडक्ट. थस तो इस केस में यानी हमने एनर्जी सप्लाई करनी है फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम. बाहर से रिएक्शंस को हमने एनर्जी सप्लाई करनी है. सो वी कैन से दैट द सराउंडिंग्स do work on the systems. Voltaic cell में system works on the surroundings. In electrolytic cells, the surroundings do work on the system. So electroplating and recovering metals from ores involve the electrolytic cells. For electrolytic cells, delta G is positive क्योंकि ये non-spontaneous reaction होते हैं. So for all non-spontaneous reactions, delta G is greater than 0, positive है. और E of the cell potential is negative. तो ये तो दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो सेम हैं. द टू टाइप्स ऑफ सेल्स हैव सर्टेन डिज़ाइन फीचर्स इन कॉमन. कुछ इसमें सिमिलरिटीज़ भी है, डिससिमिलरिटीज़ भी है. तो सिमिलरिटीज़ क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. दोनों केस में चाहे वो वोल्टिक सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, दोनों केस में दो इलेक्ट्रोड्स होंगे और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है. इलेक्ट्रोड्स हमेशा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में डिप्ड फॉर्म में होते हैं. इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस. द इलेक्ट्रोड्स का फंक्शन क्या है? द इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन द सेल्स एंड द सराउंडिंग्स. हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं. इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक को एनोड कहते हैं, दूसरे को कैथोड कहते हैं. एनोड इज एन इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस. यानी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं. रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, साइड बाय साइड होते हैं. तो अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एक इलेक्ट्रोड पर होती हैं और रिडक्शन रिएक्शन दूसरे इलेक्ट्रोड पर होती हैं. सो एनोड इज एन इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस. Oxidation क्या है? It is the loss of electron. So electrons are lost by the substance being oxidized, that is the reducing agent, and leave the cell at the anode. So anode के जरिए यानी इलेक्ट्रोड के जरिए, इलेक्ट्रोड का काम क्या है? Electrodes conduct the electricity. Electrodes conduct the electrons, flow of electrons. So oxidation पर, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय द सब्सटेंस. जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन लीव द सेल एट द एनोड. सिमिलरली कैथोड is the electrode is an electrode at which reduction half reaction takes place. Reduction half reaction, cathode. So electrons are gained by the substance being reduced. So that is the oxidizing agents, and the electron enter the cell at the cathode. Here are some. अब इसको कैसे याद रखेंगे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन है, कैथोड पर रिडक्शन है. तो इसके लिए कुछ ये ट्रिक्स दिए हैं कि दी वर्ड्स एनोड एंड ऑक्सीडेशंस. एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड पर रिडक्शन हो रही है. तो एनोड और ऑक्सीडेशन दोनों वॉवल से स्टार्ट होते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं. The words anode and oxidation start with vowels. The words cathode and reduction start with consonants. Number 1. Number 2. Alphabetically, anode एक एनोड है, दूसरा कैथोड है. So alphabetically, A in anode comes before the C in cathode. यानी A पहले आता है और C बाद में. एनोड और कैथोड की बात करते हैं. और फिर है ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है. तो O पहले है और R बाद में आता है. So alphabetically the A in anode comes before the C in cathode, and the O, this is O not 0, O in oxidation comes before the R in the reduction. तो इससे भी याद रख सकते हैं. और तीसरा, look at the first syllable and use your imaginations. Anode, oxidation, N-ox, reduction or cathode, red cat, N-ox, anode, oxidation, or red cat, reduction, cathode. So this figure shows the
comparisons of voltaic cell and electrolytic cells. Both consist of electrodes immersed in electrolytes. इस केस में भी electrodes हैं और electrolytes में inserted हैं. Both electrodes are connected with the circuits. इस तरह इस केस में भी और इस केस में भी. So general characteristics of the voltaic cells. A voltaic cell A generate यहाँ पर ये voltaic cell है, तो इसमें से spontaneous reaction हो रहा है, जिसमें से ओवरऑल रिएक्शंस क्या है, ये x plus y पॉजिटिव gives x पॉजिटिव एंड y. तो इस केस में यानी x changes to x plus, it means this is oxidations. So oxidation half reactions, x की ऑक्सीडेशन हो रही है. तो यहाँ पर ये जो x हैं, यहाँ पर x ये एनोड है, इसकी ऑक्सीडेशन होकर आयंस सॉल्यूशन में आएंगे और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स लिव दिस हाफ रिएक्शन थ्रू दिस एनोड. तो यहाँ पर और दूसरे केस में रिडक्शन में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस x ने लूज किए हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द सर्किट, एंटर द रिडक्शन हाफ सेल, और यहाँ पर ये रिडक्शन में हिस्सा लेते हैं. सो y पॉजिटिव टेक्स इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस. तो अब यहाँ पर इस केस में देख ले, ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा. दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रिडक्शन दोनों को जब ऐड कर लेते हैं तो एक में राइट साइड पर इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और x प्लस वाई प्लस और x प्लस और y. तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा G इज लेस देन 0, नेगेटिव में है. अब इस केस में इस एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज. क्या वजह है? क्योंकि जब इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है so electrons are continuously added to this electrode, यानी इस इलेक्ट्रोड के जरिए इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम से निकल रहे हैं. तो इस एनोड पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं. तो अपेरेंटली इन इलेक्ट्रोड्स पर, एनोड और कैथोड पर, इन केस ऑफ वोल्टेक सेल देयर इज नो चार्ज. इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज तो तब आएगा जब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे. लेकिन relatively anode is relatively negative and cathode is relatively positive. apparent कोई चार्ज नहीं है लेकिन relative चार्ज इस पर है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और वो इस सिस्टम से निकल रहे हैं और यहाँ इस कैथोड के जरिए इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से लिए जा रहे हैं. so therefore this is relatively positive, this one anode is relatively negative. दूसरे केस में यहाँ पर जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो सराउंडिंग्स यानी उस इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इसको लोड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, यानी वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग्स, सिस्टम डज वर्क ऑन द सराउंडिंग्स, एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस इन वोल्टेक रिएक्शंस. इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा, इसका अपोजिट है. इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो यहाँ पर एनर्जी सोर्स लगा लेते हैं. तो अब जो टर्मिनल, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, जो बैटरी के साथ कनेक्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा. अब इसमें से इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस होंगे. तो जो नेगेटिव आयंस होंगे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लूज करते हैं. तो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज ऑक्सीडाइज्ड. तो अब यहाँ पर एनोड पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, नेगेटिव आयंस हैं, तो ये कहाँ पर जाएगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा. तो यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जब ये जाएगा तो वहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. तो इस केस में एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, इस केस में एनोड नेगेटिव था. वोल्टेक सेल में एनोड नेगेटिव था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है. तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और इस तरह जो पॉजिटिव आयंस होंगे, those positive ions move towards the negative electrodes. तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, गेन कर लेता है, सो इट इज रिड्यूस्ड. तो अब यहाँ पर नेगेटिव पर रिडक्शन हो रही है, सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड कैथोड. नेगेटिव इज कैथोड. इस केस में नेगेटिव एनोड है, यहाँ पर पॉजिटिव एनोड है, इस केस में पॉजिटिव कैथोड है. तो ये हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं,
तो A नेगेटिव, B पॉजिटिव, A और B। डेल्टा G स्पॉन्टेनियस है, सो डेल्टा G इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड टू ड्राइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। सो सराउंडिंग्स, यानी यहाँ पर हमने बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी है, तो सराउंडिंग्स या पावर सप्लाई डू वर्क ऑन द सिस्टम in case of electrolytic cell, in case of non-spontaneous electrochemical reactions. So a voltaic cell A generate energy from the spontaneous reactions, whereas electrolytic cell B requires energy to drive a non-spontaneous electrochemical reactions. In both type of cell, two electrodes dip into the electrolyte solutions, and an external circuit provides the means for the flow of electrons between them. दोनों को अगर हम देख ले एक्सटर्नल सर्किट्स हैं। वोल्टेक सेल में दो सर्किट है, वो हमने नेक्स्ट वोल्टेक सेल में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन दोनों में ये कॉमन फीचर है कि सर्किट्स हैं। इस सर्किट्स के जरिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में भी सर्किट एक्सटर्नल सर्किट है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज होता है, करंट फ्लो ऑफ करंट के लिए। In both type of cell, two electrodes dip into the electrolyte solutions, and an external circuit provides the means for the electrons to flow between them. Most important, notice that oxidation takes place at anode and reduction takes place at cathode. यानी एनोड और कैथोड को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जिस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज है वो एनोड है और जिस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड है। ये बात गलत होगी, क्योंकि इस केस में एनोड नेगेटिव है, दूसरी केस में एनोड पॉजिटिव है। तो एनोड और कैथोड को कैसे डिफाइन करेंगे? एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर रिडक्शन हो रही है। तो अब इसमें चार्जेस उसमें डिफरेंट है, अपोजिट है। इन केस ऑफ वोल्टेक सेल, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, रिलेटिवली नेगेटिव, एंड कैथोड इज रिलेटिवली पॉजिटिव, अपेरेंटली इस पर कोई चार्ज नहीं है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और एनोड दूसरे कैथोड वो नेगेटिवली चार्ज है, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये बात जहन में रखें कि इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको एनोड और कैथोड नहीं कह सकते। एनोड और कैथोड इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से कहते हैं। यहाँ पर ये एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव आयंस जाएंगे। नेगेटिव आयंस, इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, ज्यादती है, इसलिए ये नेगेटिव है। तो इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एनोड। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव आयंस जाएंगे, तो पॉजिटिव आयंस ये इसलिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्रोटॉन की ज्यादती है। तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरे करने के लिए वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो अब इस रिडक्शन की वजह से इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को फिर कैथोड कहेंगे। So in both types of cell, two electrodes dip into electrolyte solutions, and an external circuit provides the means for the electrons to flow between them. Most important, notice that the oxidation takes place at the anode and reduction takes place at the cathode, but the relative electrode charges are opposite in two cells. एक में पॉजिटिव है, दूसरे में नेगेटिव है। तो ये तो जनरल डिस्कशन है ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो दो तरह के हैं, वोल्टेक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वोल्टेक सेल को, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं।